السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاکستان میں اگر سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر ہمیں عوام کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اگر ہم بات کر لیں پارلیمنٹ کے اندر تو حکومت اور اپوزیشن کے امیدوار جو 8 فروری کے الیکشن میں عوام سے اس فیصلے کے ساتھ یہ وعدے لے کر آئے تھے کہ وہ عوام کو ریلیف فراہم کریں گے، ان کی مشکلات حل کریں گے، ان کو درپیش مسائل کا حل نکالیں گے، تو ہمیں ایسا ہوتا ہوا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آئینی ادارے بھی ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ میں اقتدار کی جنگ چل رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ اور اگر ہم دیکھیں تو عوام بے حال ہے، پریشان ہے، ان کا کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ مہنگائی کی ستائی ہوئی، بجلی کے اضافی بلوں کو رو رہی ہے ہماری عوام، بے روزگاری کے سبب پریشان حال ہے ہمارا نوجوان طبقہ، اور اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ بری طرح سے غمزدہ ہے اور دکھی ہے، اور یہ چاہ رہی ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ اپنی تمام تر ان کی بیک فٹ پر وہ ان کے جو لڑائیاں ہیں، جو جتنی بھی وہ لوگ مشکلات کو جھیل رہے ہیں ان سے ان کو چھٹکارا دلایا جائے کسی طرح سے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں اداروں کے حوالے سے تو وہ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ گہما گہمی اور ایک کشمکش کا شکار ہیں، اور آپس کے مفاد میں انہوں نے اس کو آگے رکھا ہوا ہے، برتری پہ رکھا ہوا ہے، اپنے مفادات کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں اور عوام کے بارے میں سوچنے سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب حکومت کو آگے بڑھ کر عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ 8 فروری سے لے کر اب تک تقریباً 7.5 ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، اور کوئی خاطر خواہ عوام کو ریلیف فراہم نہیں ہوا ہے۔ ابھی میرے ساتھ اس وقت جو بڑی تعداد میں عوام موجود ہے ان سے ہم جانیں گے، سماجی کارکنان موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں کہ جو بجلی کے بلوں کے ستائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور کس طرح سے اس مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، اور حکومت سے ان کے کیا مطالبات ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس قسم کا ریلیف ان کو فراہم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنی آج کے پروگرام میں، خصوصی پروگرام میں، کوہ نور نیوز کا پروگرام غیر جانبدار ایک ایسا پروگرام ہے جو ہمیشہ سے عوام کے مسائل کی آواز بنا ہے، اور ہم نے ہمیشہ اپنے پروگرام میں ایسے ہی مسائل کو اجاگر کیا ہے جو عوام سے ریلیٹڈ ہوں، اور عوام کی مشکلات کو ہم نے ہمیشہ ملک کے ایوانوں تک پہنچایا ہے، اور کوشش کی ہے کہ حکومت تک آواز کوہ نور نیوز کے توسط سے پہنچتی رہے تاکہ ان مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ تو عوام کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ جو غلامی صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے عوام اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے اور بے روزگار، ہمارا نوجوان طبقہ بھی ایک بڑی تعداد میں بے روزگار ہے اور بہت مشکلات کا شکار ہے، ایسی صورتحال میں جو مہنگائی کا طوفان عوام کے اوپر گرا ہوا ہے، جس طرح سے بجلی کے بلوں کی صورت میں عوام اس وقت سروائیو کر رہی ہے، اور ایک ہمیں اضافی بل جو ہیں اور جس میں ایک کئی قسم کے ٹیکسز جو ہیں جو حکومت نے لگا دیے ہیں اور ہم لوگ مشکلات کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کوہ نور نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس عوامی ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، عوام کے بنیادی مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کوہ نور جو ٹی وی ہے، نیوز ہے، اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ باقی چینلز بھی ہیں میڈیا کے بہت سارے، لیکن کسی کی توجہ اس طرف عوام کی طرف نہیں ہے۔ سب کی توجہ یا حکومت کی طرف ہے، یا اپوزیشن کی طرف ہے، یا بڑے جو وزیر ہیں ان کی طرف ہے، یا ٹاک شوز میں بس دونوں حکومتی اور اپوزیشن، نہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، نہ اپوزیشن کی کوئی توجہ ہے۔ اگر پچھلے دنوں میں بات کروں گا، معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے یہ ایجنڈا نہیں رکھا عوام کے لیے، انہوں نے یہ رکھا ہم نے اتنی سیٹیں ہماری ہوں گی صوبائی کی، اتنی سیٹوں کی انہوں نے بندر بانٹ کی ہے، لیکن عوام کے مسائل پہ کوئی بات انہوں نے نہیں کی، حالانکہ ان کو عوام کے مسائل پہ بات کرنی چاہیے۔ عوام کے مسائل یہ ہیں، ہمارے پاس کل ایک بزرگ آئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں مانگ رہے؟ وہ بیچارہ رو پڑا، کہتے ہیں مانگ اس لیے رہا ہوں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ہمارے گھر ایسی جگہ پہ ہم گئے ہیں، اس کے یہ بھائی گئے ہیں وہاں دیکھ کے آئے ہیں، مطلب ایسے حالات میں کہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں، وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، اور ان کے پاس 3 مہینے کا 4 مہینے کا کرایہ بقایا ہے، اور بجلی کے بل 30,000 35,000 بل آیا ہوا ہے، تو مطلب لوگوں کے پاس اپنے گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انسان کھائے یا بل ادا کرے، یہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ IMF کی شرائط انہوں نے مان کے تمام جتنے بھی سخت شرائط تسلیم کر کے عوام پہ بوجھ ڈال دیا ہے، عوام پہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، اپنی عیاشی ختم نہیں کر رہے۔ ہمارا مطالبہ ریاست سے ہے کہ اس جو جتنی مراحت ہے یہ بند کی جائیں، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اب میرے پاس یہ بل موجود ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ بل ایک عام ایک چھوٹے سے گھر کا بل ہے، اب یہ 64,000 بل ہے،
ये 64,000, ये देखें अगर कैमरा दिखा सके, 64,000 का एक छोटे से घर का इंसाफ का बिल है। ये भाई खड़े हैं इधर, तो ये इनका बिल है, ठीक है। उसके बाद ये 37,000 का बिल है, फिर 24,000 का बिल है, फिर 12,000 का। मतलब ये आम आदमी अपने बच्चों का खाना पूरा करे या 2 वक्त की रोटी को ये बिल दे, तो ये बिल ये एक बहुत बड़ी साजिश है अवाम को तंग करने के लिए। अवाम को बिल्कुल पीस के रख दिया गया। लिहाजा इसको बिल को रिलीफ मिलना चाहिए, बजाय इसके हुकूमतें अवाम को रिलीफ दें, अवाम को तकलीफ देने के लिए हुकूमतें। हालांकि पूरी दुनिया में हुकूमतें बनती है अवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन यहाँ की हुकूमत बनती है अवाम को तकलीफ देने का। अभी बेचारे इतने लोग रोज़गार से तंग हैं, जो रोज़गार भी नहीं है, रोज़गार भी हुकूमत नहीं दे रही बल्कि उल्टा रोज़गार छीन रही है। लोगों की पेंशन बंद कर दी है, सरकारी इदारे जितने लोग रिटायर हैं उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं। हालांकि ये तुकबंदी, हालांकि लोग जितने आप यूरोप चले जाएं दूसरे ममालिक में, उमर ला के नाम से उनके नाम से वहाँ पे वो कानून नाफिज है कि जो गरीब है उसको वजीफा मिलता है, जो छोटा बच्चा उनको तालीम के लिए, सेहत के लिए। यहाँ ना तालीम की सहूलत है ना सेहत की सहूलत है, सिर्फ ये कि जो हुक्मरान तबका है वो अयाशी कर रहा है। उनकी अयाशी बंद होनी चाहिए, उनके मुफ्त बिल वो ख़त्म होने चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आईपीपीज़ के इदारों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं आईपीपीज़ की कि जो बिजली बना भी नहीं रही हैं और उनको माहाना हुकूमत को अदा करना पड़ रहा है, और अरबों रुपए की मद में जो पैसा है ये इन आईपीपीज़ के पास जा रहा है, जबकि ये पाकिस्तानी आवाम के किसी काम में नहीं आ रहा और कोई खातिर ख्वाह बिजली भी डेवलप नहीं की जा रही। तो ऐसे ये जो आईपीपीज़ का मुआहदा उन्होंने किया, बिल्कुल ये ऐसा मुआहदा है कि आवाम के पीठ में छुरी घूमने वाला मुतालबा। मतलब वो उनके बंद पड़े हुए, लेकिन उनको माना पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए दिए जा रहे हैं आवाम के पैसों में से। फिर वो IMF से कर्जा लिया जाता है, वो किस्तें वहीं से मुकम्मल होती है। इसको फौरी तौर पर आईपीपीज़ को ख़त्म करना चाहिए मुआहदे को, ताकि आवाम को वही पैसा आवाम पे लगे, आवाम को बिजली की सहूलत मिले, बजाय इसके आवाम को सहूलत है वो उन लोगों अयाशियों में सारा कुछ खर्च हो रहा है। आपका क्या नाम है? नूर आलम। क्या करते हैं आप, क्या जॉब है आपकी? बेरोज़गार ही हैं समझे, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल आपको पता है कि आजकल बिल्कुल ठप है प्रॉपर्टी का कारोबार, सिर्फ बिलों वगैरह से और ये इन चीज़ों से तंग आए हुए हैं कि हाँ जी 24-30 हज़ार रुपये बिल हर माहाना जो है ना वो सिर पर आया होता है। बंदा खाना पूरा करे, बच्चों के अखराजात पूरा करे, पढ़ाई पूरा करे, या इसके अलावा ये जो रोज़ के इनके बिल हर रोज़ हर महीने बाद बजट आया होता है, वो हर रोज़ पेट्रोल चेंज वो ऊपर गया होता है कि हाँ जी आज 5 रुपये नीचे हुआ है तो 20 रुपये ऊपर गया है। आपका बिल कितना है? 24,000। और आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं, कॉलेज में बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि अब इतनी मुश्किल हुई है कि क्या कहें। लेकिन वो ना बिल दें तो बिजली का मीटर कटता है, सुई गैस, अब वो भी उन्होंने देखते देखते बिजली के देखते सुई गैस को ऊपर ले गए हैं, और पानी वाले जो है वो भी छलांगे मार रहे हैं ऊपर। वो भी अभी पहले 3 महीने बाद 200-300 बिल आता था, इस वक्त हर महीने जो है ना 1200-1300 बिल उन्होंने भी बढ़ा दिया है। हर बंदा जो है हर बंदा जो है ना इनसे परेशान है। आप क्या करते हैं? मैं अपना प्राइवेट बिजनेस है जी मेरा। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये महंगाई के खिलाफ, जिस तरह से आज आवाम इकट्ठी हुई है यहाँ पर? देखिए जी, महंगाई तो ज़ाहिर है, तो इसीलिए सारी दुनिया परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है महंगाई के हाथों। अब लोग बिजली के बिल अदा करें, गैस के बिल अदा करें, बच्चों की फ़ीसें दें या अपना खाना पीना करें। मैं सिर्फ इतनी शार्ट सी एक बात करूँगा कि अगर किसी की तनख्वाह 40-50 हज़ार है तो कोई हमारा वज़ीर ख़जाना, कोई मशीर, कोई वज़ीर उस घर का बजट बना दे, उनकी फ़ीसें, उनके घर का किराया, उनका गैस का और बिजली का बिल अदा करके बता दे, तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। वरना लोग तो अब खुदकुशियाँ करने पे तुले हुए हैं और खुदकुशियाँ लोग कर भी रहे हैं। हमारे माशरे में मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है, जो कि हमारे माशरे की रीढ़ की हड्डी थी। अब लोग लोअर मिडिल क्लास में उससे गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, और गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, अमीर अमीर हो गया और गरीब गरीब तार हो गया है। और ये माशरे की तबाही की पहला स्टेप होता है, यहीं से तबाही स्टार्ट होती है जी। तो मेरी ये हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि इस निज़ाम को बेहतर करें। ये हमने कर्ज़े नहीं लिए, ना हमने IPPs के एग्रीमेंट किए, हम तो सारी चीज़ें पे कर रहे हैं और इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अपनी चीज़ों को ठीक करें बराए मेहरबानी। अच्छा, आप बताएं कि जिस तरह से आवाम बिजली के बिलों से सताए हुए हैं और जिस तरह से महंगाई का तूफ़ान बरपा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और हुकूमत तक आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा बिल की जो है ना, बिल की तबाही चढ़ाई हुई है इन्होंने।
हमारा जो रेंट का घर है 16,000 हमारा रेंट है, तो 18,000 20,000 हमारा जो है ना बिल आ जाता है। हर माह पानी का बिल, गैस का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि हम बच्चों की फ़ीस पे करें या घर का रेंट दें या इन लोगों का ना बिल जमा करवाएं। बहुत मुश्किल है हमारे लिए इस वजह से। तो हुकूमत से ये इत्मास करते हैं कि हम लोग ना ये बिल कम से कम, जैसे पहले बिल आते थे आज से 7 साल पहले, इतना बिल हो तो हम पे कर सकते हैं, मगर बहुत बिल आते हैं हम लोग नहीं पे कर सकते इतना बिल। बच्चे आपके पढ़ते हैं? माशाल्लाह बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे, तो हम लोग इतना कुछ भी नहीं कर सकते। तो किस तरह से मैनेज करती हैं फिर इन तमाम चीज़ों को? बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि एक माह अगर बिल जमा करवाएं तो बच्चों की फ़ीस नहीं जमा करवा सकते, बच्चों की फ़ीस जमा करवाएं तो बिल नहीं जमा करवा सकते, तो बहुत मुश्किल है। आपके घर में कमाने वाले कितने हैं? एक आदमी है कमाने वाला है, तो माशाल्लाह हम 6 से 7 आदमी हैं घर के जो है, तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवाम बेहाल है और किस तरह से शिकायत कर रही है और किस तरह से वो चाहते हैं कि आवाम उनको रिलीफ फराहम करें। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? हाफिज़ सुहेल। और आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आप बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? मेरा बिजली का बिल 25,000 रुपये आया है और हम रेंट के घर में रहते हैं। तो मतलब आप ख़ुद बताएं कि हम किस तरह ये बिल अदा करें, किस तरह हम करें। हमारी तकरीबन अगर 40,000 या 35,000 हमारी तनख्वाह इनकम है महीने की, तो हम किस तरह ये सर्वाइव करेंगे। ये बिल देने के बाद, रेंट देने के बाद हम किस तरह घर में गुजारा करेंगे, किस तरह हम राशन का क्या करेंगे और क्या चीज़ें जो घर की ज़रूरत की हैं, ग्रोसरी वगैरह हम कैसे ख़रीदेंगे, क्या करेंगे। अब हुकूमत हमें बताए कि इसका हल क्या है। और जिस तरह से हुकूमत ने अभी 3 माह के लिए सिर्फ रिलीफ फराहम किया था 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन अब जैसे सितंबर ख़त्म हुआ है वो दोबारा से बिलों में उसी पैसों को डालकर वापस भेजेंगे, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी हमें नहीं चाहिए। हमें 1 या 2 महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। बाकायदा IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने चाहिए, नए सिरे से मुआहदे करने चाहिए। और वो बिजली बना भी नहीं रहे और उनको ये महीने के महीने उनको लाखों करोड़ों अरबों रुपये उनको अदा कर रहे हैं। तो ये किस मद में उनको अदा कर रहे हैं? हमारा गरीबों का कोई परेशानी हाल नहीं है। आज हम जो है ना, वो ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास छत है, ना हमारे पास मतलब ये बिजली है, ना कुछ ना कोई और सहूलियात है, ना तालीम है, ना सेहत है। हम कहाँ जाएं? हमारी बच्चों की जो पढ़ाइयाँ हैं, तालीम है, उस पर इतने खर्चे अखराजात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब स्कूलों की फ़ीसें हैं वो अलग, वो स्कूल में हम भरेंगे नहीं तो उससे बच्चों का हर्ज होगा तालीम पे। अगर हम घर का राशन नहीं लेंगे तो घर पे हम खाएंगे क्या, कैसे गुजारा करेंगे। घर आपका अपना या किराए का है? घर रेंट में हम रहते हैं। तो और किराया कितना है? किराया हमारा 23,000 रुपये किराया है और 25,000 बिल है और मेरी इनकम 40,000 है। अब ये बताएं कि मैं कैसे जो है इसको मैं आगे सर्वाइव करूंगा, कैसे हम गुजारा करेंगे। अब हुकूमत के पास मैं इस मैसेज को छोड़ रहा हूँ कि हुकूमत खुद फैसला करे और मुझे बताए कि मैं किस तरह मैनेज करूँ इस चीज़ को। मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ हो, लॉन्ग टर्म हो? जी, लॉन्ग टर्म हो, मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ मिले हमें और लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म की पॉलिसी हमें नहीं चाहिए बस। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले जब ये मेट्रो जो बस ज़ेरे तमीर थी, उस वक्त लोगों के बिल हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा आए, तो लोग शोर मचा रहे थे हमारे बिल क्यों ज़्यादा आए हैं बिजली के ना। तो मैंने कुछ बिल लिए तो मैं वापदा के दफ्तर चला गया, मुनीर हसन जो मेन ऑफिस है, तो वहाँ जाके उनसे काफ़ी तलखी हुई भी, हमें बताएं क्या है, लोग तंग हैं, बिल ज़्यादा क्यों आए हैं। मतलब एक तो होता 100 बिल आता है, एकदम 1000 आ जाए, हर बंदा परेशान है क्यों आए। वो जो उनके बड़े वहाँ थे उन्होंने बताया ये बिल ये है कि आज से कुछ अर्सा उससे पीछे 3 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया था कि आपको रिलीफ दिया जा रहा है खुसूसी तौर पे, आवाम को बिलों में इतने पैसे कम आए। तो वो दोबारा 3 महीने बाद दोबारा वही रिलीफ जो ना वापस लगा के भेज दिया, रिवर्स कर दिया। हमें मुस्तकिल हल चाहिए, आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को मतलब गरीब तर हो गया। आवाम को चाहिए कि रियासत की जिम्मेदारी होती है आर्टिकल 37, 38, 40 के तहत रियासत की जिम्मेदारी कि आवाम को दवाई, सेहत, तालीम और ये बिजली के बिल, खाने के पीने के अशिया मुफ्त फराम करे। 50 बुनियादी सहूलियात हैं उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाना चाहिए, रियासत की जिम्मेदारी है। और आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, फारिग हैं। मतलब इससे पहले क्या कारोबार था? इससे पहले मैं सऊदी अरब में था। सऊदी अरब में थे, तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? ये बिल इतने आ रहे हैं ना कि जैसे कोई आदमी लोग नहीं अदा करते, 2 महीने के बकाया जाते हैं, फिर ऊपर से नोटिस भी आ रहे हैं कि बिजली काटो इन लोगों की। एक आदमी सुई गैस का भी ये हाल है। अभी देखें पानी का बिल पहले आता था 200-250, अभी 1400 से 50 रुपये है। वो गरीब लोग कैसे करेंगे?
किसी की तनख्वाह 30 या 40 से ऊपर तो है नहीं है, रेंट देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? तो बराए मेहरबानी मेरी ये इस हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये बिल जो है ना मुनासिब करें। IPPs के मुआहिदों के हवाले से क्या कहेंगे? ख़त्म होने चाहिए, बिल आते भी देते भी हैं वो, ये हुकूमत खा लेती है, आवाम को तो कुछ भी नहीं देते हैं ना। ये हम ये रिक्वेस्ट है, और ये बिल जो है ना इन लोगों को रिलीफ दिया जाए, कम से कम मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ दिया जाए। 50% ये होना चाहिए कम से कम। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। वो तो ख़त्म होने चाहिए। वैसे भी हम देखें, हम किसी भी हम स्टोर में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वहाँ पे टैक्स अलग पेमेंट देते हैं, तो यहाँ पे भी और टैक्स लगाए हुए हैं। प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं वो भी टैक्स देते हैं, ये कौन सा टैक्स हमसे लेते हैं? ये है मेरी रिक्वेस्ट आवाम। जी जी, ये एक फैमिली जो पीरवाई से मैंने कल इनके जो शोहर हैं, आपके शोहर हैं शौकत साहब, वो मेरे पास आए भीख मांगने के लिए ना, उन्होंने हाथ आगे मुझे कुछ दें, तो मैंने उससे पूछा आप अच्छे भले हैं, आप क्यों मांग रहे हैं? तो वो बेचारे रो पड़े अपने, उनका मेरे हालात बड़े ख़राब है, बहुत मजबूर हुआ कि क्या हुआ है। उन्होंने फिर बताया कि मेरे 4 महीने का घर का किराया बकाया है, और पता नहीं 37,000 बिल आया है, पिछले महीने कोई किससे ले के 20,000 जमा कराया, 17,000 फिर अभी बकाया इस महीने का, और पिछला भी साल लग गया है, फिर दोबारा वो 30,000 बना हुआ है, तो कहीं से पैसे कारोबार है कोई नहीं, इसलिए मांगने में मजबूर हो गया हूँ। तो बेटा बीमार है, इनकी वाइफ बीमार है, वो खुद आज उन्हें आना था, लेकिन वो एबटाबाद गए अपने गांव के, कहीं से पैसे उधार पकड़ के किराया दूँ कि मालिक वहाँ तंग कर रहा है। मतलब इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज हैं पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में, जो कि बेसूरत समानी के आलम में रह रहे हैं, जिनका कोई आप जहाँ पे रह रहे हैं उस घर को आप देखें ना, एक इंसान के रहने की जगह नहीं हो, लेकिन मजबूरन रह रहे हैं, नाले की बदबू है, सब कुछ है, गंद बला है, मजबूरन रह रहे हैं। दूसरा, अब मालूम का निकालने की धमकी दे रहे हो, फिर एबटाबाद के पैसे अरेंज करेंगे। अब ये मैं कहता हूँ खुद ही अपने ज़ुबानी इनसे पूछते हैं क्या इनके हालात चल रहे हैं। इस तरह की ये अकेले नहीं है, ये एक मिसाल है, इस तरह की हज़ारों लाखों फैमिली हैं जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, तो सारा बोझ इन गरीबों में पड़ रहा है। तो कहाँ से आए ये लोग, किधर जाएँ? जब तक आइन इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आइन इम्प्लीमेंट होता है, इन लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि आपकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है और काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, आप मुझे ये बताएं आपके शौहर क्या काम करते हैं? वो मंडी में ना रेडी चलाते हैं, तो कभी काम होता है कभी नहीं होता है, तो मालूम मकान है बहुत तंग करते हैं। सुबह भी किराया कितना है आपके घर का? किराया 10,000 है, और आज भी मालूम मकान आई थी, वो इतना जलील करके गई है, कह रही है अगर मुझे रात को ना मिले तो मैं ताला लगा लूँगी। बिजली का बिल कितना आया? 17,506 रुपये, और वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना। कभी वो एक भाई को ले आती है, कभी दूसरे भाई को, वो जो धमकियाँ देते रहते हैं हम ताले पे ताला लगाएंगे। एक बार उन्होंने ताला लगा भी लिया था, तो फिर हमने उधार मांग के किस्त इस वक्त जमा कर दी थी 20,000, अभी फिर से 17,506 रुपये हैं। तो और वो कहते हैं कि बिल जमा हो जाना, वो हमें किराया पहले दो, और किराए के लिए वो बहुत परेशान करते हैं। आज तीसरा दिन है, उन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है, वो इतना परेशान करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ। तो आप कहीं काम करती हैं? मैं काम पहले करती थी, कारखाने में काम करती थी, फिर शुगर है ना, शुगर की वजह से गुर्दों का मसला हो गया और छाती का कैंसर हो गया, फिर नहीं कर सकती हूँ। और ये आपका बेटा है? जी। ये बीमार है? जी, इसके जिस्म में पीप पड़ गई थी, और बहुत इलाज करवाया, अपना मकान ज़मीन गांव से सारी बेच दी थी। फिर वो इधर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल है, लोगों ने मदद हमदा की, ये चैनल चला था हमारे एबटाबाद में, इसका फिर इलाज हुआ था। अब इसकी ये वाली आँख जो है ना, इससे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, और ये वाली बिल्कुल ख़त्म है, तो कहते हैं इसका इलाज ना होगा तो ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त आम आवाम के दरमियान में मौजूद हूँ, और जिस तरह से ये लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, जिस तरह से ये लोग परेशान हैं बिजली के बिलों की वजह से, आप देख सकते हैं कि हालात कितने नाजुक होते जा रहे हैं। अगर हम रिलीफ़ की बात करें बिजली की, तो पंजाब की CM मरियम नवाज़ साहिबा ने 14 रुपये फ़ी यूनिट जो रिलीफ़ फराहम किया था, वो 3 महीने बाद ख़त्म हो चुका है, और अब दोबारा वो रिवर्स होकर बिलों में लगकर आवाम तक पहुँच रहा है। तो आवाम लॉन्ग टर्म हल चाहते हैं, शॉर्ट टर्म उनको रिलीफ नहीं चाहिए। उनका यही मुतालबा है कि हमें लॉन्ग टर्म रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि हम हमेशा ही सुकून से रह सकें और बिजली के बिल आसानी से अदा कर सकें। प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से हम शुरू करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आवाम के क्या क्या मसाइल हैं और उनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं। जी, आपका नाम क्या है?
अबरार हुसैन। और आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, टैक्सी ड्राइवर। और बिजली का बिल आपका कितना आया है? 64,000। जी 64,000। 64,000 बिजली का बिल आया है। 64,000 रुपये इनका बिजली का बिल आया है। यूनिट है 2,000 बिल है, बाकी 62,000 जो है वो टैक्स है। तो ये आप किस तरह से अदा करेंगे? आप तो इतन करेंगे ये टैक्सी ड्राइवर हूँ, कैसे अदा करेंगे? घर भी आपका किराए का ही अपना है? किराए पे रहता हूँ, ज़ाहिर बात है, मालूम मकान कहते हैं, बिल भी जमा कराओ और मकान भी खाली करो। और आप क्या करते हैं? तंदूर का काम करता हूँ। अच्छा, आपका बिल कितना आया बिजली का? बिजली का 10,000। 10,000 आया है। तो अब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या ये कहें कि क्या बिल बहुत ही ज़्यादा पे हैं, हर बार महंगाई इतनी है जितना कोई हिसाब नहीं है। कभी गैस का ज़्यादा आता है, कभी बिजली का ज़्यादा आता है। किराया दें, बिजली का बिल दें, गैस का दें, या बंदों का मजदूरी दें, या घर का खर्चा चलाएं। इतनी महंगाई है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसके अलावा इनको कंट्रोल करना चाहिए। गरीब आवाम क्या क्या करेगी? जो 1,000 रुपया 800 रुपया 1,200 की दाढ़ी लगाएगा, वो गरीब का बच्चा क्या करेगा? इनको गरीब आवाम से कंट्रोल करना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं बेसिकल बस वीडियोग्राफर हूँ। तो अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना है? मेरा आया 26,000। क्या कहना चाहेंगे? बस हुकूमत को ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ही अगर बिल बेचते रहे तो गरीब ख़त्म हो जाएगा और अमीर बढ़ता जाएगा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। कम करो, कम करो बिजली का बिल, कम करो, कम करो बिजली का बिल, कम करो। आईनी तरमीम में बिजली का बिल कम करो, आईनी तरमीम में गैस के बिल कम करो, आईनी तरमीम में रिलीफ दो। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आमना है। ये महंगाई के ख़िलाफ़ और बिजली की जो बिल हैं, इजाफी कीमतें जिस तरह से हुकूमत ने लगा के बिलों में भेज दी हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जी, इसके हवाले से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, बेचारे एक एक कमरा लेके रह रहे हैं, तो एक एक कमरे की 10-10 हज़ार रुपया हमारी रेंट है और 12-15 हज़ार एक कमरे का बिल आ गया है। हम लोग किधर से जमा करवाएं? बच्चों की तालीम हम किधर से दिलवाएं? एक बंदा कमाने वाला हो, 10 बंदे खाने वाले हो, हम लोग किधर से दें? इतना हम लोग नहीं कर सकते अफोर्ड। आटा देखे किधर पहुँच गया है, चीनी किधर पहुँच गई है, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे हमारे स्कूल में नहीं जा रहे, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, बच्चे पीछे रह गए। तालीम किधर से दिलवाएं बच्चों को? जी, यानी आप लोग मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसा हल चाहते हैं कि महंगाई का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सके और आप लोग भी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हुकूमत से क्या कहेंगी? हुकूमत से यही कहेंगे कि खुदा के वास्ते ये महंगाई कम करें, ये बिजली के जो बिल आ रहे हैं ये कम करें। हम लोग बहुत अपने आप से तंग आ गए हैं कि इतनी महंगाई हम लोग कैसे अफोर्ड करें ये चीज़ें। घर का रेंट दें, बिल दें, गैस का बिल दें, क्या क्या करें? हम लोग नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग तंग आ गए हैं। घरों में लड़ाई शुरू हो गई है। आपके घर में कमाने वाले कितने हैं? एक बंदा कमाने वाला है और 10 बंदे खाने वाले हैं। जी, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोबिया। और आप बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिजली के बिल कम किए जाए और थोड़ा महंगाई कम की जाए, क्योंकि हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। तो एक मैं कमाने वाली हूँ, बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो कोई कमाने वाला नहीं है, तो महंगाई कम की जाए। घर का खर्चा किस तरह चलता है? मैं खुद काम करती हूँ लोगों के घर। आप काम करती हैं? जी जी, मैं लोगों के घरों में काम करके बच्चों को पालती हूँ। आपका बिजली का बिल कितना आया है? मेरा बिजली का बिल 9,000 आया। और आप किराए के घर में रहते हैं? जी जी, किराए के घर में रहते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज होती हैं? बस बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रही हैं, बहुत मुश्किल से मैनेज हो रही हैं। ऐसे हालात में तो आप बच्चों को भी नहीं पढ़ा रही हूँ? बस ऐसे ही मदरसे में छोड़े हुए, स्कूल नहीं पढ़ा सकती मैं। कैसे एक हो के तो मैं नहीं पढ़ा सकती, कैसे बंदा करे? हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? बस महंगाई कम कर दें, महंगाई कम हो जाए तो फिर ख़ास तौर पर ये जो बिजली के बिल हैं इनमें रिलीफ फराहम किया जाए। जी जी बिल्कुल, ये बिल कम किए जाए, क्योंकि किराए का घर भी है, बंदा बिल दे, किराए के घर दे, वो करे, खर्चा करे, कितना कुछ करे, इस वजह से महंगाई कम की जाए। जी, आपका नाम क्या है? नाजिश। और आप बिजली के बिलों की इजाफी कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ये हमारा एक ही कमरा है, 18-18 हज़ार रुपये बिल आता है। बहुत मुश्किल से बच्चे पढ़ रहे, पहले प्राइवेट पढ़ रहा था, उधर से निकाल के सरकारी में डाला, लेकिन सरकारी वाले भी वही कह रहे स्कूलें बंद हो रहे हैं, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो ये एक कमरे में ज़ाहिर है 18-18 हज़ार रुपये बिल आ जाए तो बहुत मुश्किल से जो है तो फिर पूरा पड़ता है। मैं ख़ुद काम करती हूँ घरों में, तो मियाँ का ये 2-3 दिन मंडी में काम करते हैं, मंडी का हालात भी ख़राब है, कभी वो ज़ाहिर है लेड़ा लगाते हैं तो कभी काम होते हैं, कभी नहीं होता, बहुत मुश्किल से जो है तो ये बिल कम हो जाए तो थोड़ा सा तो ये। घर का किराया कितना है? 9,000 रुपये एक कमरे का। तो
आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर इतना कमा लेते हैं कि ये सारा खर्चा आपका निकल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है और अखराजात भी होते हैं घर के? ये बस मैं खुद घरों में 2 घरों में काम करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, जो काम मिल गई इस्त्री मिल जाए जो भी मिल जाए काम करती हूँ। बहुत मुश्किल से मतलब बिल वगैरह आ जाए तो किसी ज़ाहिर है किसी से उधार करना पड़ता है, तो वही बिल जमा करने हैं, बहुत मुश्किल से होता है ये बिल। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? ये बिल कम कर दे थोड़ा सा, तो ये महंगाई देखो कितना महंगाई है। तो ज़ाहिर है खाने वाला माशाल्लाह 5-6 बच्चे हैं, फिर कमाने वाला वही बात है, नहीं होते काम तो बहुत मुश्किल से जो है तो गुजरता है टाइम। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे 2 सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, एक मदरसे में बड़ा डाला है, वो मदरसे में पढ़ रहा है। क्या करते हैं आप? आप जनाब डेयरी का काम करते हैं, कोई काम चलता है कोई चलते ही नहीं है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? ये जो बिजली के इजाफे बिल आ रहे हैं, बहुत बिल आ रहे हैं और बिल असी कर ही ना सकने पैर, और किराएदार रखे नो भी आने असी भी पैर ना कर सकने बिजली का, असी क्या कर सकने गैस भी ना कर सकने, और बहुत महंगाई है। इस महंगाई ने बारे हुकूमत को आना चाहिए कि सारा ने करना चाहिए ना, सस्ताई करनी चाहिए नहीं है, और इन्हें लोगों गरीबों ने तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और गरीब बहुत परेशान है। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना है आपका? बिल 17,000। 17,000 आया आपका बिल। तो आप किराए के घर में रहते हैं या अपना घर है? नहीं, घर तो अपना है, लेकिन ये घर वाला जो है ना वो 17,000 है। बाकी जो दुकान का जो बिल है वो 45,000 से ऊपर आता है। तो एक मतलब चिल्लर चलाते हैं या 2-3 बल्ब जलते हैं। तो ये है कि ये बिल जो है ना, हालात इतने में काम कारोबार है नहीं है, तो इस वजह से जो है ना हम ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि बिल में फौरी कमी की जाए। और अब देखें कि अब आने वाले जो सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब बिजली का बिल अगर इन्होंने 1 महीना 2 महीने कम भी कर दिया और उसके बाद इन्होंने गैस का बिल बढ़ा देना है, तो ये आवाम के लिए ये और बोझ बन जाएगा। आवाम अब इस पोजीशन में नहीं है कि इतना बोझ उठाए, तो हुकूमत इसको फिल फॉर कम करके आवाम को रिलीफ दी जाए। गुलाम अली साहब, आपने देखा कि हमने आवाम की एक बड़ी तादाद में हमने लोगों से बात की है। यहाँ पर सब बिजली के बिलों को रो रहे हैं, सब महंगाई के सताए में हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। और हमने ख़वातीन से भी बात की जो कह रही हैं कि वो अपने बच्चों को उन्होंने प्राइवेट स्कूल से उठाकर सरकारी स्कूलों में डाल दिया है, बीमार हैं, बेहाल हैं, किसी का मियाँ रेडी लगा रहा है, और बिजली के बिल इनके इतने ज़्यादा आ गए कि इनके घर के किरायों से भी ज़्यादा एक कमरे में के घर में ये लोग रह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप ओवरऑल अगर हम देखें, ये जायज़ा लें, तो जिससे भी बात करें हर बंदा रो रहा है, हर बंदा परेशान हाल है और हर बंदा सताया हुआ है। तो ऐसा क्या करना चाहिए हुकूमत को? आप क्या हुकूमत को सजेशन देना चाहेंगे कि कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि आवाम को सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ अगर देखा जाए तो अपर लेवल का जो तबका है, जो हमारी इलीट क्लास है, सिर्फ वही अयाशी कर रही है, सिर्फ वही चैन सुख की बंसरी बजा रही है और वही चैन की नींद सो रही है। जो हमारा गरीब तबका है, निचला तबका है, वो मुसलसल पिसता चला जा रहा है। और राइट नाउ मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसे हालात हमें नज़र नहीं आ रहे कि जो सूरत हाल को हम संभाल सकें। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर बंदा, आपने देखा किससे बिल, गैस का, बिजली के बिल के वजह से हर बंदा परेशान है। लोग मतलब मजबूर है कि बिल कहाँ से जमा कराएं। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए असल में आइन, पाकिस्तान का आइन है ना, उसमें सारा कुछ मौजूद है। अब 2014 के धरने में डॉक्टर तारुल गाजी साहब ने आइन लोगों को बढ़ा दिया था कि आइन अगर इम्प्लीमेंट हो जाए। उन्होंने आइन की 62-63 भी बताई और उन्होंने ये बताया आइन की 37, 38, 39, 40 ये आवाम को बुनियादी हकूक़ देना रियासती ज़िम्मेदारी इसमें आइन में मौजूद है। अगर रियासत अपने हकूक़ अमल दरामद पे करती है, अपना काम पूरा करे, हक अदा करती है आवाम को आइन इम्प्लीमेंट करके, अगर आइन को हकीकी मानों में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ ये बिजली के बिल, ये बुनियादी मसाइल जितने भी हल हो सकते हैं। लेकिन उस पर अमल दरामद करने की तरफ कोई नहीं जाता। क्यों? जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारे हुक्मरान, जो पहले थे, जो अब भी हैं, वो सब अपनी जेबें बने, अपने बैंक बैलेंस, अपने बिजनेस एम्पायर, और आइन कोई इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा, आप एक समाजी कारकुन भी हैं, आपका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से भी है, पाकिस्तान अवामी तहरीक से। आपने ताहिर कादरी साहब की बात की है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो मुल्क में इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है और जिस तरह से तमाम तर सियासी जमातें, जो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो अपने अपने मफादात के हुसूल के लिए
لیے جستجو کر رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں, اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں مملکت کی باغ دوڑ آ جائے اور وہ اس مملکت کا نظام سنبھالنے لگیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر طاہر القادری صاحب کو, جن کی ایک فکری سوچ ہے, جو ملک میں تبدیلی کے بھی خواہاں ہیں, کیا ان کو یہاں پر آ کر ملکی سیاست میں حصہ لے کر آگے بڑھ کر ان تمام تر مسائل کے حل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو بھی جماعت آتی ہے وہ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, کسی کو عوام اسلام اور پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ کسی بھی دلچسپی نہیں ہے, صرف اپنا اقتدار حاصل کر کے اپنے جیبیں بھرنا. اور جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہے, سینیٹر ہیں, ایم این اے ہے, وزراء ہیں, ان سب کی عیاشیاں بند ہونی چاہیے. تو دوسری بات, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک ایجنڈا دیا تھا ان کو, انہوں نے راحیل شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہمیں یہ ایجنڈا آپ اگر, انہوں نے پورا ڈاکومنٹ دیا راحیل شریف صاحب کو, 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا آپ یہ نافذ کریں, اگر آپ یہ نافذ کر لیتے ہیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے وعدہ کر کے وہ عوامی جو ایشو پہ وعدہ کیا, لیکن نفاذ نہیں ہوا. لہٰذا اس کے لیے چاہیے یہ کہ بہت بڑی عوامی قوت کے ساتھ ایسا مطلب ہو جو عوام نکلے اپنے حقوق کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ہم نے اذان انقلاب دے دیا, اب ہمیں 1 کروڑ نمازی چاہیے. مطلب 1 کروڑ نمازی سے مراد ہے کہ اپنے حق کے لیے لوگ نکلیں. جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو آٹومیٹکلی ان کو ان کا حق انشاءاللہ ملے گا. ہمارے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں اگر ہم صوبوں کی سطح پر بات کریں تو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ میں بھی کمپٹیشن چل رہا ہے, اور اگر کسی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور جو دیگر صوبے کے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کا امپلیمنٹ اپنے صوبوں میں بھی کروائیں, بجائے یہ کروانے کے ہمارے ہاں مقابلہ بازی کا رجحان مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے, اور ایک دوسرے پر جملے کسنا, باتیں سنانا, یہ چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہیں. تو اپنے حکمرانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس موقع پر جب کہ ہماری عوام پس رہی ہے مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں, بجلی کے بلوں کے ہاتھوں کی, تو کیا اس وقت تمام تر پولیٹیشنز کو متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ملک کی بقا اور سلامتی اور عوام کے لیے نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ دیکھیں جو بیسک بنیادی جو عوام کے مسائل ہیں, حکومتیں عوام کے مسائل حل کرنے کی بنتی ہے. اگر کوئی صوبائی حکومت اچھا کام کر رہی, باقیوں کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے, لیکن وہ حل نہیں ہے. ابھی پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے اور 4 صوبے ہیں, اور انڈیا آپ کے ساتھ اس کے کتنے صوبے, بہت سارے ممالک جن کے چھوٹے ممالک کے صوبے زیادہ. ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 35 صوبے اس وقت ملک میں, ہر ڈویژن ایک صوبہ ہونا چاہیے. اگر صوبے زیادہ ہوں گے, صوبے کا بڑا ہوگا, اس کو چلانے والا ایک گورنر ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی تنخواہ بھی نارمل ہوگی, اور اتنی بڑی اسمبلیاں پوری فوج پارلیمنٹ میں, ان سب کی تنخواہیں برات اس طرح بند ہوں گی. صوبے چھوٹے ہیں, اگر صوبے 35 ہو جائیں گے پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل جلدی حل ہوں گے اور غریب کا سنوائی بھی ہوگی. اس سے ہر بندہ اب ایک لاہور مرکز ہے, لاہور کتنا بڑا ہے, پتہ نہیں کہاں سے لوگ لاہور میں جاتے ہیں اپنے مسائل. اگر لاہور میں 4 یا 5 6 صوبے بن جائیں گے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. اس لیے صوبے 35 اس وقت چاہیے پاکستان کے, 35 نہیں کم 30 کریں, لیکن انہوں نے جنوبی صوبہ بنانے کا وعدہ کیا, وہ بھی نہیں بنا. ہزارہ صوبہ وہی پینڈنگ ہے, ابھی پٹھوار کے بھی آواز اٹھ رہی ہے, لیکن صوبے جو ہے نا اس وقت ضرورت ہے کہ زیادہ ہونے چاہیے, 30 سے 35 صوبے ہوں تاکہ عوام کے مسائل حل ہونے میں آسانی ہو. جی ناظرین, ہم نے عوام سے بات کی, لوگوں کے مسائل سے آپ کو آگاہ کیا, ان کے بجلی کے بل ہم نے دکھائے کہ کس طرح سے وہ مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں, بجلی کے بلوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. اگر ہم اس وقت بات کریں حکومت کی, تمام تر لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ انہیں ریلیف فراہم کیا جائے. ہمارے یہاں اگر پارلیمنٹ کی بات کریں تو ہمارے یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑنے میں لڑی ہوئی ہیں, اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آئینی ترامیم کا امپلیمنٹ ہو جائے. آئینی ترامیم کے امپلیمنٹ سے زیادہ ضروری اس وقت عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے, ان کو ریلیف فراہم کرنا ہے. ہمارا آئین کا آرٹیکل 38 بھی اسی بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں, ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, روٹی کپڑا مکان, ان کی تمام تر سہولیات ان کو پرووائڈ کی جائیں, جس میں انفارچونیٹلی ہماری حکومت ناکام ہے اس وقت. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں متحد ہوں اور عوام کے ریلیف کی بات کریں, عوام کے بارے میں سوچیں, نہ کہ اپنے مفادات کی جنگ لڑیں. کیونکہ اگر ہم پارلیمنٹ کی کسی بھی کارروائی کو دیکھ لیں وہ آپسی لڑائیوں کی نظر ہو جاتی ہے, اور اس میں عوام بالکل بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے, اور ہمیں عوام کے مسائل کے بارے میں بات کرتا ہوا کوئی بھی نظر نہیں آتا.
لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ان تمام تر باتوں کو زیر غور رکھا جائے اور تمام تر چاروں صوبوں کے حکمران، تمام تر سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں، آئینی ترامیم کی بات کو سیکنڈ رکھ کر فرسٹ عوام کو آگے رکھیں اور ان کو ریلیف فراہم کریں، اور ان کے مسائل کو ہماری عوام چاہتی ہے کہ انہیں لانگ ٹرم ریلیف دیا جائے، شارٹ ٹرم ریلیف کے وہ خواہاں نہیں ہیں. شارٹ ٹرم ریلیف ان کو کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، لہٰذا اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.